السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں مجاہدین کا قابض بھارتی فورسز پر حملہ، بھارتی فوج کو سنبھلنے نہ دیا، جھڑپ میں 4 بھارتی فوجی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج کو حملے میں جانی نقصان پر اپنی عوام سے شرمندگی اٹھانا پڑی۔ بھارتی فورسز نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کر دی، آبادی پر توپ خانے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے شعیب ہاشمی سے۔ جی شعیب، بتائیے گا کہ بھارت کو پھر شرمندگی اٹھانا پڑی اپنی عوام کے سامنے؟ جی بالکل، بھارت کو ایک بار پھر اپنے عوام کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ کو بتاتے چلوں کہ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں بھارتی فوج اور حریت پسندوں کے درمیان جو ہے ایک جھڑپ ہوئی۔ یہ جھڑپ جو ہے یہ 7 اور 8 نومبر کی درمیانی شب میں ہوئی۔ تاہم جھڑپ میں بھارتی فوج کے 4 جوان جو ہیں وہ ہلاک ہوئے اور بھارتی فوج کو خاصی بھاری نقصان جو ہے وہ بھی اٹھانا پڑا، جس بنا پر بھارتی فوج کو اپنی عوام کے سامنے شرمندگی کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ ہم ISPR کے مطابق آج بھارتی فوج نے آزاد جموں کشمیر کے مختلف سیکٹرز میں فائرنگ کی ہے، جبکہ اس فائرنگ میں بھارتی فوج کی جانب سے بھاری توپ خانے اور راکٹ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے۔ تاہم جن علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ان علاقوں میں وادی نیلم، وادی لیپا اور وادی جیلم جو ہیں وہ شامل تھیں۔ تاہم بھارتی فوج نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 4 شہری شہید اور 12 زخمی ہو گئے۔ تاہم پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی کے دوران بھارتی توپیں جو ہیں وہ خاموش کروا دی گئیں اور بھارتی فوج کا خاصا جانی نقصان ہوا۔ تاہم اس جھڑپ میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے 1 جوان شہید اور 5 زخمی جو ہے وہ بھی ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا شعیب ہاشمی، تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت اشتعال انگیزی سے باز نہ آیا۔ بھارتی فوج نے ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کنٹرول لائن پر آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ سے 1 شہری شہید جبکہ 3 شہری زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے ہانجر اور رکشکری سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ کی، آبادی کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 1 شہری شہید جبکہ 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کرنے والی بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ کر کے عوام کا معیار زندگی بلند کریں گے۔ ہماری معیشت اٹھ رہی ہے، خسارے کم کیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عمائدین سے خطاب اور مختلف منصوبوں کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا، زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، انسان ہر مشکل وقت سے سیکھتا ہے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کر کے ہی آگے بڑھتا ہے۔ برے وقت اور ناکامیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، چیلنجز سے سیکھنا چاہیے۔ پولیٹیشنز تھے، انہوں نے بھی زیادہ تر اپنا سوچا بجائے بلوچستان کے عوام کا، اور بدقسمتی سے یہ صرف بلوچستان میں نہیں، زیادہ تر پاکستان میں ہماری پولیٹیکل لوگوں نے ملک سے زیادہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا۔ ہمارے ایسے بھی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے لنڈن میں زیادہ ٹرپس کی اپنے دور میں بجائے بلوچستان کی، اور ایک ایسے بھی صدر آئے جنہوں نے 5 سالوں میں دبئی میں زیادہ ٹرپس کی، زیادہ دبئی گئے بجائے بلوچستان۔ تو اس لیے وہ توجہ جو بلوچستان کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی۔ میں اپنی طرف سے مان کا حصہ ہے کہ کبھی بھی کوئی قوم ترقی نہیں کرتی جب تک وہ اپنے کمزور طبقے کو ساتھ اوپر نہیں لے کے آتی، کہ کبھی بھی کوئی ملک، کوئی قوم آگے نہیں جا سکتی جب ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہو جائے اور باقی قوم پیچھے رہ جائے۔ کوئی قوم نے ایسے ترقی نہیں کیا۔ اس لیے ہمارا مقصد بلوچستان کو اوپر اٹھانے کا صرف یہ نہیں کہ یہاں میں آپ کے سامنے پروجیکٹس اناؤنس کر دوں اور پھر جس طرح ماضی میں ہوتا رہا تالیاں بجا کے چلا جاؤں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آج پاکستان کرونا سے نکلا ہے، کوئی بھی بر صغیر میں ملک اس طرح کرونا سے نہیں نکلا جس طرح پاکستان نکلا ہے۔ یہ میں اپنی قوم کو آج ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آنے والے دنوں میں بہت احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ دوسرا راؤنڈ آ رہا ہے اب کرونا کا، کہ یہ پچھلے 4 مہینے میں پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان نے کوئی قرضہ پچھلے 4 مہینے میں نہیں لیا۔ یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور آج اللہ کا شکر ہے سیمنٹ ہمارا ریکارڈ سیمنٹ بک رہا ہے، کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن شروع کر دی ہے، کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے پاکستان میں۔
रिकॉर्ड सीमेंट की सेल। वज़ीर आज़म का दौरा तुर्बत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। होशाब ता आवान 146 किलोमीटर M8 का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने गरीब बच्चों के लिए दारुल एहसास प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तुर्बत एयरपोर्ट तौसीब मंसूबा का भी संग बुनियाद रखा। 200 बेड्स के मकान मेडिकल टीचिंग अस्पताल का संग बुनियाद रखा गया। वज़ीर आज़म ने तुर्बत यूनिवर्सिटी फेज 2 का भी संग बुनियाद रखा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। होशाब ता आवारान 146 किलोमीटर M8 का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने गरीब बच्चों के लिए दारुल एहसास प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तुर्बत एयरपोर्ट तौसीब मंसूबा का संग बुनियाद रखा। 200 बेड्स के मकान मेडिकल टीचिंग अस्पताल का संग बुनियाद रखा गया। वज़ीर आज़म ने तुर्बत यूनिवर्सिटी फेज 2 का संग बुनियाद रखा। बिलावल भुट्टो सरदारी ने इल्जाम आयद किया है कि इनकी इंतखाबी मुहिम रोकने की कोशिश की गई। गिलगित बिल्तिस्तान में आखिरी जलसा था जिसकी इजाजत नहीं दी गई। आखिरी जलसे में अपना मंशूर पेश करना था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान सूबा बदर करने की कोशिश की गई। अदालतों और आइन का एहतराम करते हैं। हम नहीं चाहते कि इंतखाबात मुतनाज़ हों। अगर ऐसा हुआ तो इस सब पर असरात पड़ेंगे। अब भी होश के नाखुन ना लिए गए तो इलेक्शन के बाद जो इंतजाज होगा इसके बहुत असरात होंगे। सारे इदारे अपने अपने काम करें, सियासतदानों पर छोड़ दें। मगर आखिर आज मेरा कैंपेन का आखिरी जलसा था, मेरा कंक्लूडिंग जलसा था, जहां मैंने अपना मंशूर और अपना सोच गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में के सामने पेश करना था। मेरा ये हक मुझसे छीना गया है। मेरा ये हक कि मैं कैंपेन करूं और मैं कैनवस करूं उस आखिरी वक्त तक, जहां तक कैंपेनिंग आज तक जारी है, जहां मेरे इंतजामिया की तरफ से इजाजत थे। मेरा अब जलसा साइमल्टेनियसली चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। मगर मैं खुद उस जलसा में इसलिए शरीक नहीं हूं कि अदालत ने मुझे मना किया है। मैं समझता हूं ये नाइंसाफी है। एक तो हमने अदालत के सामने 2015 का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, और उस फैसला ने वो जज लिखा है जो आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जहां इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इलेक्शंस करने का तो हदायत है, मगर हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम्स और खास तौर पे उनके जो सियासी ओहदेदार हैं उनके पॉलिटिकल फ्रीडम्स को कोई रुकावट नहीं डाल सकते। ये फैसला हमने जज के सामने डाला, और जो कोर्ट है, एक जज ने हमारे हक में रूल किया कि हमारे सियासी आज़ादी है, हमारा हक है कि हम कैंपेन करें और हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है। और इस साथ साथ दूसरा जज ने फैसला किया कि नहीं, मुझ पे वही पाबंदियां डालेंगे जो हुकूमती वज़ीर पेशेंट पे डालना चाहिए था, मगर आज तक वो अपने रवायत में जारी है, अपना धांधली करने में जारी है। हुकूमती वज़ीर को मुझे समझ के इस मुल्क की वज़ीर आज़म की जो पाबंदियां जो होने चाहिए अब मुझ पे भी लागू किए गए हैं, और ये बहुत बड़ा नाइंसाफी है। मरीम नवाज कहती हैं कि कराची में कमरा तोड़कर अंदर घुस गए, इस वक्त एहतराम याद ना आया। मुल्क की बेटी हूँ, हुक्मरानों को अवाम की कोई फिक्र नहीं, दाव पर लगा दिया गया। मरीम नवाज ने सवात में जलसा से खिताब करते हुए कहा, सियासी इंतकाम में अंधे हो जाने वालों को इंसानियत भूल गई। रोज BRT की बसों में आग लग जाती है। चाहती हूँ कि पंजाब की तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी तरक्की करें। जो भाई खड़ा है, अमीर मकाम, तेरा मकाम, मेरा मकाम, अमीर मकाम, अमीर मकाम। खैबर पख्तूनख्वा का अब एक ही मकाम है, उसका नाम है अमीर मकाम। इन्होंने आज से 4-5 साल पहले जब मुझसे पहली मुलाकात की वजीर आजम हाउस में, जब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अब मेरी जमात है, मैं घर बैठ जाऊंगा ये, लेकिन नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा। और उसी की सजा उनको मिली। 20 साला बेटे इशफाक अमीर मकाम को गिरफ्तार किया, और आज उसके साथ इतना जुल्म हुआ कि वो बच्चा, अपना जो ज़हनी तवाज़न है वो बिगड़ गया उसका। शर्म आनी चाहिए आप सबको, जो इतना कम ज़र्फ है कि सियासत की लड़ाइयां घरों, बेटियों और बच्चों तक ले जाए, उसको उठा के खैबर पख्तूनख्वा से बाहर फेंक दो। और फिर हम आज दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हो? क्या खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की कुर्बानियों का ये सिला दे रहे हो आवाम को? शर्म आनी चाहिए।
शेख रशीद कहते हैं कि मरीम नवाज को गिलगित बिल्तिस्तान में नताइज नजर आ गए, इसलिए बयानिया बदला। नून लीग अंदर से आवाजें बुलंद होना भी बयानिया तब्दील करने की वजह है। वफाकी वजीर शेख रशीद मुलाकात के लिए चौधरी परवेज इलाही के घर गए। मुलाकात के बाद मीडिया टॉक करते हुए शेख रशीद का कहना था कि पहले कहते थे कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं, अब कहते हैं कि पहले इमरान खान को हटाओ फिर बात होगी। नून लीग पीटीएम की छतरी तले डायलॉग करने जा रही है। नून लीग के अंदर से जो मैं कहता हूं दिसंबर से फरवरी तक, पहले तो फरवरी कहता था, अब 30 जनवरी में ही आ जाता हूं, आवाज उठने वाली है, उनके मेंबरों की आवाज उठने वाली है। वो इसके साथ नहीं चल सकते। और जब गिलगित बल्तिस्तान के भी एमएनए और सेनेटर होंगे, इस तरह बलूचिस्तान में भी होंगे, और नंबर 1 पे पीटीआई होगी, नंबर 2 पे पीपल्स पार्टी होगी, नंबर 3 पे आजाद होंगे, नंबर 4 पे एन होगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये ना होना कल ऐसा ही रिजल्ट निकल आ जाए, कहेंगे जी वो तो धांधली हो गई है, या आप कहें कि उसने ये कैसा कह दिया। सो मैं पीटीआई को कल अक्सरियत में देख रहा हूं, मैं पीपल्स पार्टी को नंबर 2 पे देख रहा हूं, आजाद को नंबर 3 पे देख रहा हूं, और नून लीग को धचका लगेगा। और ये मुल्की सियासत में अगर इन्होंने अपना बयानिया न बदला और अकल के नाखिन ना लिए तो ये बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। इस बंद गली में दाखिल होने, ये कहते हैं जी इंतखाब हो। जुल्फकार अली भुट्टो ने मुझे कहा, शेख रशीद 6-7 नवंबर 1968 को जुल्फकार अली भुट्टो ने मुझे कहा, शेख रशीद इंतखाबात मुल्क की बुनियादें हिला देते हैं। तीसरा साल हमें लग गया है जी, अगला साल इलेक्शन की तैयारियों का है, मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने हैं, और सेनेट के इलेक्शन के बाद इस मुल्क में इस्तेकाम और ज्यादा आएगा। और जो लोग ये समझ रहे हैं, लास्ट जो बात मैं कहना चाहता हूं, नून लीग पीडीएम की छतरी के नीचे मुज़ाकरात करने, डायलॉग करने जा रही है, जो अच्छी बात है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करना पीटीएम का मुश्तरका फैसला होगा, किसी एक जमात का नहीं। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस्लाहात की तरफ जाने के लिए जिम्मेदार ही से बात करनी होगी। बिलावल और मरियम के अल्फाज में ताबीर का फर्क हो सकता है, मगर धांधली के जिम्मेदार का नहीं। कुछ लोग शख्सियात का नाम लेने से इसलिए गुरेज करते हैं कि इससे इदारे का तासुर बनता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हुए तो पीटीएम के प्लेटफॉर्म से होंगे। बिलावल और मरियम के बयानात में कोई तजाद नहीं। मौजूदा हुकूमत का धांधली की पैदावार होने पर दोनों का इत्तफाक है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि आईजी सिंध वाक़े पर इंक्वायरी में मस्बत पहलू भी है। ट्रंप हट गया, अब मोदी और इमरान का वक्त भी आने वाला है। हुकूमती जलसों से कोरोना नहीं फैलता तो अपोजिशन के जलसों से भी नहीं फैलेगा। पीटीएम के जलसे हर सूरत होंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वोट की इज्जत, अवाम के फैसले को अहमियत दी जाए, साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, जो भी रिजल्ट होगा हम तस्लीम करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से ये बात ही करनी है कि आप मुदाखलत ना करें। गिलगित बिल्तिस्तान में प्री पोल धांधली की जा रही है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत ने खुद मियां नवाज शरीफ को इजाजत देकर इलाज के लिए बैरून मुल्क भिजवाया। इनके तर्जमानों का काम सिर्फ दूसरों को गालियां देना है। नवाज शरीफ अपना इलाज करवा कर बिल्कुल वापस आएंगे, अपने इलाज के साथ वो इनका भी इलाज करेंगे। लीगी रहनुमा ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि 2.5 वर्षों में सिर्फ अवाम का वक्त जाया किया गया। कहा गया था कि 100 दिन में सब ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन अवाम का जीना दो भर कर दिया गया। ये माफिया की हुकूमत है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि गिलगित बिल्तिस्तान इंतखाबात में 1000 जाली पोस्टल बैलेट पेपर्स धांधली का सबूत है। गिलगित बिल्तिस्तान में वोट चोरी हुआ तो नताइज खतरनाक होंगे। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि हल्का दयामिर 2 से वोट चोरी होने का एक और नतीजा आ गया। 700 सरकारी मुलाजमीन के नाम पर 1700 से जायद पोस्टल बैलेट पेपर्स इजरा। ये होती है धांधली। 1000 से जायद जाली पोस्टल बैलेट पेपर्स जारी किए गए। 5 उम्मीदवारों का मुश्तरका तौर पर इलेक्शन कमीशन जाना धांधली की अंधेर नगरी का सबूत है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इन जाली पोस्टल बैलेट्स की बुनियाद पर कामयाबी के सर्वे जारी हो रहे थे। सरकारी मुलाजमीन से हकूक छीनने वाली हुकूमत अब इनका वोट भी छीन रही है। जाली हुक्मरान कौमी मफादात को अपनी गंदी सियासत की भींट न चढ़ाएं। तो दूसरी जानिब शहबाज गिल कहते हैं कि नून लीग का धांधली बयानिया मुतवक्किल था।
शिकस्त इनके चेहरे से अंजा है। मियां मफरूर ने खुद अपने सियासी करियर में वोट चोरी किए हैं। मौमन खसूसी शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा, इमरान खान ने कभी अंपायर्स के साथ नहीं मिलाए, जबकि पूरी जिंदगी इंसाफ के नाम करने वाले पर ना इंसाफी का धब्बा लगाना शर्मनाक है। गिलगित ने इनकी हार पर ठप्पा पहले ही लगा दिया था। शहबाज गिल का कहना था कि नून लीग के दरबारी बौखलाहट के शिकार हैं। इदारों के खिलाफ बयानियां लाने वालों को अवाम मुस्तरद कर चुकी। गिलगित के अवाम गयूर हैं, कभी रियासत मुखालिफिन को मौका नहीं देंगे। जीत तहरीक इंसाफ का मुकद्दर है। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि बेगम सफदररहमान का दावा बिल्कुल झूठ का पलंदा है। किसी ने बात करने के लिए राबता नहीं किया। इनके मुल्क दुश्मन बयानिए से पीडीएम की क़यादत भी तितर बितर हो गई। कौम इनके नए रवैये पर दंग है। 5 साल 6 साल मुफ्त का वोट को इज्जत दो, फौज से ये, एस्टेब्लिशमेंट से ये, लेकिन एंड रिजल्ट कल ये आया कि फौज से डायलॉग करो, फौज को राजी करो, फौज इस हुकूमत को चलता करे, मुंतखब हुकूमत को, और फिर उसके बाद हमें इक़्तिदार में लाए। सारी पाकिस्तानी कौम दांतों में उंगलियां दे के दंग है और रंग फंग है कि ये क्या बात हुई। बिल्कुल झूठ, कोई हकीकत नहीं है। बेगम सफदररहमान का इस बात का इतराफ बीबीसी को इंटरव्यू के फौज के हल्के मेरे इर्द गिर्द के लोगों से राब्ता करके मुझसे डील करना चाहते हैं। फौज राजी नहीं है। इनकी तरफ से इस बात की जनाब ख्वाहिश क्यों पीडीएम बनाया? बनाने के बाद जो जो खराफात इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की शय के ऊपर इन्होंने की, इनका बयानिया किसी और पॉलिटिकल पार्टी का दम खम नहीं था कि उठा सके। सब लोग तितर बितर, शिराजा बिखर गया, पीछे बेगम सफदररहमान साहिबा रह गई अकेली। अब इनको समझ आ गई कि इनके पल्ले अब कुछ नहीं रहा। कुछ खबरें ब्रेक के बाद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मददारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच गई। हर जमात की जानिब से अवाम को लुभाने की सरतूर कोशिशें की जा रही हैं। इंतखाबात के पेश नज़र हुकूमत ने इलाके भर में 14 से 16 नवंबर तक आम तातील का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 15 नवंबर 2020 इतवार को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। शहरी अपने इलाकों में पहुंचेंगे ताकि वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकें। इसलिए सरकारी मुलाजमीन के लिए नामुमकिन है कि वो इलेक्शन के रोज वोट कास्ट करके वापस अपनी ड्यूटी पर पहुंच सकें। इसलिए इनकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए पूरे गिलगित बल्तिस्तान में हफ्ता 14 नवंबर से पीर 16 नवंबर तक आम तातील होगी। आमिर डोगर को वजीर आजम के मौमन खसूसी बराए सियासी अमूर मुकर्रर कर दिया गया। आमिर डोगर की तैनाती एजाजी तौर पर की गई। काबीना डिवीजन ने आमिर डोगर की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आमिर डोगर कौमी असम्बली में पीटीआई के चीफ वेब हैं। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। आमिर डोगर को वजीर आजम के मुआवन खसूसी बराए सियासी अमूर मुकर्रर कर दिया गया। आमिर डोगर की तैनाती एजाजी तौर पर की गई। काबीना डिवीजन ने आमिर डोगर की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।
शहबाज शरीफ ने जेल में सहूलियात न देने पर जेल सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती अहकामात के बावजूद जेल में सहूलियात नहीं दी गई। अदालत ने बेड और दीगर सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया था। कमर दर्द की तकलीफ में मुब्तला हूँ, जेल में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत से इस्तदा की है कि जेल सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का आइंदा हफ्ते एक रोज़ा दौरा अफगानिस्तान मुतवक्किह है। इमरान खान दौरा अफगानिस्तान अफगान सदर की दावत पर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा अफगानिस्तान आइंदा हफ्ते के दरमियान में होगा। इमरान खान दौरा अफगानिस्तान में अफगान अमल दो तरफा ताल्लुकात पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा अफगानिस्तान इंतहाई अहम नौइयत का हामिल होगा। FTA होने के बाद पाक अफगान आजाद तिजारती मुआहदे पर बात होगी। ज़राए के मुताबिक दौरे अफगानिस्तान के दौरान पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे पर भी मुज़ाकरात होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड का नया मुआहदा किया जाएगा। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड का नया मुआहदा 10 साल के लिए किया जाएगा। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदा आइंदा साल खत्म हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के अज़्म का आदा किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबिते में कोरोना वबाओ से निमटने के इक़दामात और इंसदादे पोलियो मुहिम की बहाली पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पोलियो के खात्मे की मुहिम कौमी फरीजा और कौमी कोशिश है। पाकिस्तान में हर बच्चे का महफूज होना अपनी कामयाबी तस्वुर करते हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम की कामयाबी मोबाइल टीम्स, कानून नाफिज करने वाले इदारों के बायस मुमकिन है। पोलियो मुहिम को तब कामयाब समझेंगे जब पाकिस्तान में कोई बच्चा इससे मुतासिर नहीं होगा। बिल गेट्स ने कोरोना के बावजूद पोलियो मुहिम को महफूज और कामयाब बनाने के लिए पाक फौज की कोशिशों और आलमी वबा के फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ की। पाकिस्तान ने 20 बड़ी आलमी मुआशी ताकतों पर जोर दिया है कि वो तरक्की पजीर ममालिक को कर्जों की अदायगी के लिए दी गई मोहलत में इस वक्त तक तोसी दें जब तक ये ममालिक इस वबाई मर्ज की वजह से पैदा होने वाली मुआशी तबाही से मुकम्मल तौर पर निकल नहीं आते। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफीर मुनीर अकरम ने एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना के वबाई मर्ज ने तरक्की याफ्ता ममालिक की मईशतों को तबाह कर दिया है, जिसके नतीजे में हमें आबो हवा की तब्दीली समेत दीगर मकामी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मुआशी बहरान से निकलने के लिए तरक्की पजीर दुनिया को मुनासिब माली ताउन की जरूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान के कर्जों से निजात के इक़दाम पर रोशनी डालते हुए मुनीर अकरम ने कहा कि हमें यकीन है कि G20 ममालिक तरक्की पजीर ममालिक के कोरोना वायरस की वबा पर मुकम्मल काबू पाने तक कर्ज वापसी की मुअत्तली की मुद्दत में तौसी करेंगे। उन्होंने कम तरक्की याफ्ता ममालिक के कर्जा खत्म करने का भी मुतालिबा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन सिंध असम्बली जाम मदद अली कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। वजीर आला सिंध और गवर्नर सिंध ने इनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जाम मदद अली कोरोना वायरस में मुब्तला थे। जाम मदद अली कई रोज से निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। जाम मदद अली को तशवीशनाक हालत में ICU मुंतकिल किया गया था। जाम मदद अली सिंध की कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन भी थे। जाम मदद अली सांगड़ से रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जाम मदद अली के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जाम मदद अली अच्छे बेहतरीन इंसान और अच्छे दोस्त थे। पाकिस्तान में लापरवाही और बेहतियाती से अमवात की तादाद बढ़ने लगी है। 24 घंटों में मजीद 37 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7092 हो गई। मजीद 2304 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,52,204 हो गई। 3,21,563 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 23,641 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 37 मरीजों के इंतकाल ने खतरे की घंटियां बजा दी। पंजाब में 2,455, सिंध में 2,718, खैबर पख्तूनख्वा में 1,303, बलूचिस्तान में 115, गिलगित बिल्तिस्तान में 93, आजाद कश्मीर में 118 और इस्लामाबाद में 250 मरीज इंतकाल अब तक कर चुके हैं। जबकि 24 घंटों में कोरोना वायरस की वजह से मजीद 2,304 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,08,822,
سندھ میں 1,53,000, خیبر پختونخوا میں 41,472, بلوچستان میں 16,274, گلگت بلتستان میں 4,416, اسلام آباد میں 23,122, آزاد کشمیر میں 5,139 مریض ہو چکے ہیں. دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 13,02,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 5,32,00,000 ہو گئی. 3,73,00,000 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. موذی کورونا وائرس کے وار جاری ہیں. امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا. امریکہ میں 2,49,000, برازیل میں 1,64,400, بھارت میں 1,29,000, میکسیکو میں 97,000, روس میں 32,443, ترکی میں 11,233, ایران میں 41,000, افغانستان میں 1,581 اور سعودی عرب میں 5,605 اموات ہو چکی ہیں. مزید خبریں اس بریک کے بعد. اداکارہ وینا ملک بچوں کو دبئی سے لے کر چلی گئی. سابق شوہر ڈھونڈتا ہی رہ گیا. اسد خٹک نے کہا کہ گزشتہ برس سے بچوں کو نہیں ملا. وینا ملک زیادتی کر رہی ہیں. دیکھتے ہیں شجر الدین کی یہ رپورٹ. وینا ملک کے سابق شوہر اسد خٹک کا اپنے بچوں سے متعلق جاری بیان میں کہنا تھا کہ وینا ملک نے ان کے بچوں کے ساتھ بہت زیادتی کی. اب خاموش نہیں رہوں گا. دوسری جانب وینا ملک نے بھی الزام کا جواب دیتے ہوئے قانون اور شریعت کی روح سے بچوں کی سرپرستی میرے پاس ہے. دبئی کورٹ کی تم کیا بات کر رہے ہو؟ تیری 4 ادھر نہیں رہ رہی. تو دیکھ میں کیا کرتی ہوں ان کے ساتھ. تو چل کر. میں کسی سے ملنے نہیں گئی ہوں. تمہیں کس نے کہا میں تمہاری بیوی ہوں؟ ہماری ڈائیورس کو 1.5 سال ہو گئے اور پیسے اس کو واپس کر دو, ٹھیک ہے نا, اور دفع ہو جاؤ یہاں سے. اسد خٹک کا کہنا تھا کہ گزشتہ برس دسمبر سے وینا ملک دبئی سے ان کے بچے لے کر فرار ہو گئی ہے. تب سے اب تک اپنے بچوں سے نہیں ملا. نہیں جانتا کہ بچے کہاں اور کس حالت میں ہیں. 26 ستمبر 2019 کو لاسٹ ٹائم میں دبئی میں نے اپنے بچوں کو دیکھا تھا. اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا. مجھے نہیں پتا میرے بچے کیسے اسمگل ہوئے ہیں, کیسے وہ لے کے چلی گئی اور کس حالات میں میرے بچے ہیں. مجھے کچھ نہیں پتا اور میں بہت ڈسٹرب ہوں. میں اس عورت نے مجھے اتنا ذلیل کہ پوری دنیا میں ابھی تک کر رہی ہے. میں نے توکل کیا اللہ کی خاطر, اس کو عزتی اس کے سر پہ دوپٹہ رکھا, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ایک غلطی مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دے گی. میں پوری دنیا میں اس عورت نے مجھے ایسا رسوا کیا, ایسا میرے اوپر ایلیگیشن فیک لگائے. میں نے وینا ملک کو 50 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا ہے. حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ فیئر انکوائری کرتے ہوئے پتہ لگوائیں کہ وینا کے پاس بچوں کے پاکستانی پاسپورٹ کیسے آئے. سب سے پہلے میری گورنمنٹ پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ یو شوڈ بی اے فیئر اینڈ آئی وانٹ دا فیئر انویسٹیگیشن کہ میرے بچوں کو پاکستانی پاسپورٹ کس نے ایشو کیا دبئی سے. یہ ایلیگیشن ایسی ہے کہ آپ نے 3 کنٹریز کی ساکھ کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے. اسد خٹک کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر میرے اور میرے بچوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. انصاف کی اپیل کرتا ہوں. شجر الدین, ٹی وی ٹوڈے, لاہور. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے, کیونکہ خبر سب سے پہلے.